Yes, students, very good morning. So let us start with today's lecture. Hope you are preparing yourself for the coming exams. I think 4 was going on. That is associated with the curved surface area and the total surface area of the sphere. So fourth question we have done, and I think we were discussing question number 9. Am I right? Question number 4 तो it was done like मैंने बता दिया था. चलिए, after fourth question, see question number 7. This also we have done in the previous exercise. Read out the statement of the question number 7, exercise 13.4, page number 255. 255 page, exercise 13.4, question number 7. Diameter of the moon, 225, sorry. Diameter of the earth is approximately 1/4 of the diameter of the, diameter of the moon is 1/4 approximately diameter of the earth. बात कहां पे खत्म हुई? तो हमारी स्टार्ट कहां से होगी? अर्थ से. लेट डायमीटर ऑफ अर्थ x, then diameter of moon x by 4, right? Diameters you have supposed, radius you can find out, and then surface areas, then ratios. This we have done earlier, that's why I'm not going to solve it now. So 9th question from the exercise, then we will move towards the next concept. Question number 9. What he says, there is a right circular cylinder which just encloses a sphere inside it. Right circular cylinder just encloses a sphere inside it. Just encloses, what is the meaning of just encloses? It means that when we put the sphere inside the cylinder, sphere touches all the 4 sides of cylinder like this. That means neither it is in the cylinder like this, or nor it is outside the cylinder like this. It fits itself completely inside the cylinder. चलिए बच्चे, right? So what he says, find the surface area of the sphere, and it is given to us that radius of the sphere is r. R is the radius of the sphere, and we want to find the surface area of the sphere. What is a surface area? Means total surface area in case of sphere. So what is the surface area of the sphere formula? 4 pi r square. So first answer is to just a formula that you have to write, that is 4 pi r square. Second part is find the curved surface area of the cylinder. Hanji Parikshit, what is the formula for the curved surface area of the cylinder? Manyata. 2 pi RH is the curved surface area of cylinder. Bache, please quiet. 2 pi RH. That means we need the radius as well as height. हमें radius और height चाहिए. You see the figure very carefully. When we are talking about this figure, the radius, if radius of the sphere is r, then what you can say about the radius of the cylinder? That is 2r, because sphere is fitting itself in the cylinder, right? So radius of the cylinder will be r. So radius तो हमारे पास इसका r हो गया. And if we are talking about height of the cylinder, height is starting from the above coming to the lower direction, and this height of the cylinder, this is what of the sphere? Diameter of the cylinder. If radius is r, what will be diameter? 2r. So height of the cylinder is 2r. Now putting the values, 2 pi, radius as it is, height is 2r, and this is 4 pi r square. So curved surface area, it comes out to be 4 pi r square. Now you see, ratio of the areas obtained in these two. First part में जो आपका आंसर आया 4 pi r square, second part में आपका आंसर आया 4 pi r square. Now you want to find the ratio of these two. Now you want to find the ratio of these two. It means
it means this over this and ratio will be 1:1. ठीक है, this is all about. And let us now start with 13.7, last from last, related to cone and its curved surface area and volume. कौन वाली एक्सरसाइज इकट्ठी दी हुई है हमारे पास, इसमें वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया, everything will be included. Now see, let us recall the formulas for cone. And in cone, what we see, we are having radius, height, and another is slant height. This we are having in the case of cone. And three formulas we have discussed. One is the curved surface area, and that is equal to pi r L, and total surface area. You know total surface area. When I am talking about curved surface area, that means I am talking about the outer curved part, lateral part. When we are talking about the total surface area, means all the surfaces are to be considered. What is the base of the cone? It is of form circle. And what is the area of circle? Pi r square. So pi r L added to pi r square, that means pi r common, inside it becomes L plus r. This is called the total surface area of cone. And if we are talking about the volume of the cone, what is the volume of cylinder? Volume of cylinder. फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर. सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला कमाल होगी भाई, पाई आर स्क्वायर एच. इफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ कोन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. So volume is 1/3 pi r square h. Now the questions based on this volume is like this. Sometimes r and h both are given to you and you need to find. इनको बड़े दूर से माउंटेन्स से आना पड़ता है, इसलिए लेट हो जाते हैं. Listen. Sometimes radius and height are given. Radius and height are given. So you need to find volume. Directly put the answer value. Sometimes you are given the volume, say 366, right? Radius is also given. You have to find height. Sometimes volume is given, height is given, and you have to find radius. That means three direct questions of the volume based is that either find volume, or volume is given, radius is given, find height, or volume is given, height is given, find radius. बाकी आते हैं conceptual question जिसमें लिखा ही नहीं होता कि ये volume का question है. That we have to see ourselves. Chali, let us start. First is simple volume. Then capacity means if it is written, find the capacity of the container. Again volume. And let us do question number 3rd. Rather, question number 6 I will do. हाँ जी. जो कोन का वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर का 1/3 होता है. This is 1/3. आप एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट सेम हाइट और सेम रेडियस का कोन ले लो, एक सेम हाइट और सेम रेडियस का सिलेंडर ले लो. Put some sand in the cylindrical object. Then you will see that sand will be filled in the 3 cones. Right? No, if you are having the sand in the cylinder, conical sand is 1/3 of the cylindrical sand, right? So ये आप देखो दोनों के बीच में रिलेशन आपको यही मिलेगा, right? चलिए, so let us start with question number 6. I am doing. Volume of the cylinder is given to be 9856. Volume is 9856. Diameter of the base is 28. You know, whatever formulas we are doing, pi r L, pi r into L plus r, 1/3 pi r square h. In neither of the formula, we are using diameter. Everywhere we are using radius. So let us find radius. It is equal to 14. Now, put the formula of the volume under the abbreviation. This is 1/3 pi r square h. 9856, right? 1/3, pi is 22/7, r is 14 square, and h is to be find out. Right? When you will solve, you will get h to be, I think, 50 h. When you are solving it, you just solve it and see what the value of h you are getting. 50 or 56, I don't know exactly. Calculations कल हम कर चुके हैं इसकी. Exercise 13.7. Just see 50 is the answer of the height. Calculations you will do yourself. Height आ गई आपके पास.
right? Now the next what we rhythm अब समझ लो बेटे, right? The next that we are going to find is L. What is L? L is slant height. You know, when H is with us, R is with us, we can find slant height by using the relation between L, H and R. Which relation we are going to use, Akshit? L, H, R में. हाँ, उसको L, H, R में convert करो. शाबाश. H square plus R square. Very good. हाँ जी, आप कहाँ से आ रहे हो? हाँ? इतने लेट क्यों हो गए हो? अच्छा. Yes. Go. Listen. L square is equal to H square plus R square. ठीक है? तो वैल्यूज आप पुट कर दो. L square, H square 50 square, R square 14 square. Solve it. I think you will get 56. L you will solve yourself. Calculations I am leaving so accordingly. Let us start question number 7. You know, Corona, it has revolved each and every object or each and every human being of the society, not only society but the world also. So it's the time to revolve one, you can say, right angle triangle also. Let us revolve. देखिए जरा question number 7. There is a right angle triangle ABC. Question number 7. Right angle triangle ABC. Let us take B to be right angle. But he says its dimensions, its sides are 5, 12, 13. One is the side जिसकी वैल्यू फिक्स होगी. आपको पता है जब हम फंक्शन पे किसी जाते हैं तो चाहे हम जितना मर्जी जल्दी पहुंच जाए, हम चीफ गेस्ट की चेयर पे नहीं बैठ सकते क्योंकि उसकी चेयर फिक्स होती है. अदरवाइज फर्स्ट कम फर्स्ट रिजर्व, जो पहले आया वो पहली लाइन में बैठ गया. ठीक है, बट चीफ गेस्ट सीट इज ऑलवेज फिक्स्ड. इसी तरह से व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल, hypotenuse value is always fixed. And how we deduce the hypotenuse value? By which concept? By which no, if three sides are given, which will be hypotenuse? Longest side. यानी कि उसकी सीट फिक्स है, उसकी सीट कोई भी नहीं ले सकता. 13. हाँ ना, मैंने ये नहीं पूछा कि कौन सा हाइपोटेन्यूज होगा, मैंने ये पूछा 5, 12, 13 में से कौन सा हाइपोटेन्यूज होगा. लॉन्गेस्ट साइड इज अ हाइपोटेन्यूज. इसकी सीट हमेशा फिक्स होती है, कोई इसकी सीट पे आके नहीं बैठ सकता. ये अपने आप में चीफ गेस्ट बना हुआ है. 5 और 12 को हमने अपने अकॉर्डिंगली लेना है. लेट मी टेल यू हाउ विल टेक सो दैट इट विल बी कन्वीनियंट टू अस टू प्रोसीड फर्दर. जस्ट सी, आगे देखो जरा. ही सेज it is revolved about 12 centimeter. अब 12 और 5 को हमारी मर्जी है, हमने कहाँ पे रखना है. whatever side about which it is going to revolve, take it to be like this, standing form, and another side let it be 5. ठीक है. So first of all the thing is how to assign the values to the different side. This one is fixed. This convenience के accordingly मुझे जिसके अबाउट रिवॉल्व करना है, दैट इज टू बी टेकन लाइक दिस एंड रेस्ट यू कैन टेक ऑन द बेस. राइट नाउ ही सेज रिवॉल्व दिस ट्रायंगल अबाउट दिस साइड 12 सेंटीमीटर. सो व्हाट टू डू, जस्ट पुट टेक दिस सी, इसको उठाया, ये यहाँ स्पेस में आया. ठीक है, ब्लैक बोर्ड को तोड़ा, पिछली क्लास में गए, उधर से घुमाते घुमाते फिर वापस आ गए, घूमता गया घूमता गया घूमता गया, और घूमने के बाद यू विल डेफिनेटली गेट अ कोन. यहां से उठा, घूमा, यहां पहुंचा, ब्लैक बोर्ड टूटा, पिछली क्लास में गया, वहां से घूमते हुए आया, और घूमता घूमता व्हाट इट बिकम्स, it becomes a cone. So when we revolve the right angle triangle about its height, which object we are getting? We are getting a cone. तो सबसे पहले तो हमने पेपर में लिख देना है that after revolving a right angle triangle we will get a right circular cone. Now we are talking about the dimensions of this cone. So you can see that this R5 will become the radius of the base. You can see 5 will become the radius of the base. You can see. Gitanshu, should I go outside to teach you? And if I'm talking about height, 12. And what is slant height? 13. So this is all about the main step of the question, that you need to find the radius, height and slant height according to the figure. And rest so you can do. If he says find curved surface area, pi r L, everything is there. If he says find total surface area, pi r into L plus R. And if he is saying find volume, you can use 1 by 3 pi r square h. What he is asking for? Volume. So 1 by 3 pi r square h. Further you can do.
चलिए 13.7 यहीं पे खत्म होती है. लेट अस स्टार्ट 13.6. Now, as far as cylinder is concerned, 13.6 you can see. इसमें भी एक ही एक्सरसाइज में दोनों तरह के क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं. कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एज वेल एज वॉल्यूम. लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट फिगर, दैट इज सिलेंडर. Radius of the base, height. So 3 formulas related with cylinder we have done. Curved surface area 2 pi RH, total 2 pi r को अलग किया, अंदर बचा r plus h. 2 pi r plus h. जहां पे खत्म वहीं से शुरू. 2 pi r plus h. Method or you can say way to remember the formula is 2 pi r plus h. ठीक है? You see that cylinder, if I am looking at one curve, one upper face, another lower face. If I am talking about the upper and the lower face, what is the shape of these two faces? Circle. Sometimes the question is like this: make a cylindrical tank which is not having any lid. Then how much material? एक तो curved 2 pi RH plus bottom, that is plus pi r square. नीचे का circle, it will be having the area pi r square. ठीक है? हाँ जी. Material, volume तो quantity होती है inside. ठीक है, उस पे अभी हम आते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर एच. इसमें कभी कोई चेंजेस नहीं आएंगी. चेंजेस होंगी इसमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. इफ इट इज ओपन फ्रॉम द टॉप देन 2 पाई आर एच, कर्व्ड प्लस ऊपर नीचे वाला हिस्सा. ठीक है, लाइक दिस. सो दिस यू हैव टू सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. चलिए लेट अस डू द एप्लीकेशंस ऑफ दीस फॉर्मूलाज. एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन? समटाइम curved surface area you have to find simply, and sometimes curved surface area is given, say this, radius is given, you have to find height. Sometimes curved surface area is given, height is given, you have to find radius. Sometimes volume is given, height is given, again you have to find radius. Sometimes volume is given, height radius is given, you have to find height. ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि तीनों में से एक चीज दे दी आपको, दो चीजें दे दी और एक निकालने के लिए बोल दिया. कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं. लेट अस कंटिन्यू. सो आई एम डूइंग द सेकंड क्वेश्चन. एंड वन थिंग मोर, होलो सिलेंडर भी हमने किया था, कल ही हम करके हटे हैं होलो सिलेंडर को. होलो सिलेंडर के केस में व्हाट वी डू, कर्व्ड सरफेस एरिया, अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस अगर मैं r ले रही हूँ, बाहर वाले का कैपिटल R, हाइट दोनों की सेम रहेगी, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा बाहर वाले सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस inner cylinder. That means 2 pi capital RH plus 2 pi small rh. And when we are talking about the total surface area, this circular disc and this circular disc, what is the area of this circular disc? Pi r capital square, बड़े सर्कल में से minus pi r small r square. आपको पता है सर्कुलर पाथ का एरिया आप निकाल चुके हो 6/7 में. आउटर सर्कल माइनस, ये एक तरह से सर्कुलर पाथ ही है जिसको हमें निकालना है. आउटर सर्कल एरिया दैट मींस पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस इनर सर्कल एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर. और ऐसा सर्कुलर पाथ, ऐसी सर्कुलर डिस्क ऊपर ही नहीं नीचे भी तो है ना, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2. सो टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड तो हमेशा आने ही आने हैं, प्लस दिस विल बी एडेड, दैट इज द अपर पोर्शन एंड द लोअर पोर्शन, दैट इज 2 into pi capital R square minus pi small r square. वॉल्यूम अभी मैं बताती हूँ. देखो, अगर तो बच्चे हमारे पास रोड की बात हो रही है या पाइप की बात हो रही है, फिर तो हम इसके वॉल्यूम की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऊपर से भी ओपन है नीचे से भी ओपन है, हम कुछ उसमें कुछ डाल ही नहीं सकते. बट अगर हम बात करें बाउल की, इंटरनल बाउल एंड आउटर बाउल, सर्टेन थिकनेस, जो कि हमने स्फीयर में किया था उसके. अच्छा, अगर आपके पास एक बाउल है, ठीक है, उसमें आपको बना के दिखाती हूँ. ये देखो, ये बाउल है, ये थिकनेस है बाउल की, यहाँ पे डिजाइनिंग की हुई है कुछ अच्छे से ना, प्रिंटिंग की हुई है थिकनेस पे. ये बाउल है, तो इस बाउल का वॉल्यूम क्या होगा? वो तो इस बाउल में जितना मटेरियल लगा उसका वॉल्यूम है. बाउल का वॉल्यूम क्या है? अंदर वाले स्फीयर का, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम. क्यों? क्योंकि हमारे बाउल, हमारे सबके घर में बाउल है. जब दाल उसमें डालते हैं
तो अंदर वाली साइड पे दाल डलती है, जो थिकनेस है उसमें दाल नहीं डलती, राइट? ठीक है, और हमारी सरफेस एरिया वॉल्यूम में दाल नहीं गलती क्योंकि हमें फॉर्मूले नहीं आते, ठीक है? तो क्या होएगा इसका वॉल्यूम, जिसके नीचे परीक्षित कहता बिल्कुल ठीक बोला, जिसके नीचे का बॉटम होता है ना उसका वॉल्यूम हमारे पास इंटरनल जो ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम आ जाता है। तो ये आएगा 2/3 पाई आर क्यूब इंटरनल स्फीयर का। बट अगर मैं होलो सिलेंडर की बात करूं तो इट इज नॉट हैविंग बॉटम नॉट हैविंग बेस, इसका वॉल्यूम तो हम जज ही नहीं कर सकते। तो इस केस में हम इसके वॉल्यूम का कौन सा फॉर्मूला कर रहे हैं जो कि हर फिगर में चलता है, दैट व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल यूज्ड टू मेक दिस सिलेंडर, पेंसिल को बनाने के लिए कितनी वुड लगी, दैट इज पूरी पेंसिल के वॉल्यूम में से अंदर वाले ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस। तो इसी तरह से अगर मुझे ये देखना हो दैट हाउ मच क्वांटिटी ऑफ आयरन इफ इट इज ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट and how much quantity of wood if it is made up of wood is required to make this cylinder, this is pi capital R square h minus pi small r square h। अभी मैंने आपके सामने बाउल की भी शेप बनाई थी, अगर उसमें भी आ जाए how much wood is used to make that bowl या how much iron is used, how much steel is used to make that bowl, तो उसका भी फॉर्मूला यही होएगा outer volume minus inner volume, everywhere it goes like this only। am I clear? चलिए let us continue question number second 13.6 exercise। During recess after finishing your lunch just give one do one thing that write all the formulas yourself। देखो आपको कितने याद है कितने भूले हैं, अपने आप को एनालिसिस करो लिख के। The inner diameter of the cylindrical wooden pipe is 24. Pipe is always an example of a hollow cylinder. Its inner diameter is given to be 24 and outer diameter is 28। तो हमने दो इसके हिस्से बना लेने हैं, इनर आउटर। इसको ले लो कैपिटल स्मॉल डी, इसको ले लो कैपिटल डी। 24 रेडियस 12, 28 रेडियस 14। whatever we know from the first very point of the question, we have start the solution accordingly। then he says length of the pipe is 35। length of the pipe अगर दी हुई है 35, इट मींस इंटरनल और आउटर दोनों पोर्शन की 35 होगी। कभी किसने देखा हमने कोई पेंसिल बाय की हो उसमें वुड वाला हिस्सा छोटा और ग्रेफाइट बाहर निकल के आया हो, या फिर ग्रेफाइट बीच में गया हो और वुड ऊपर की तरफ आई हो? नो, सेम हाइट। इसी तरह से दोनों की हाइट जो है इंटरनल और आउटर की सेम ही रहेगी, इट इज गिवन टू बी 35। फर्दर ही सेज फाइंड द मास ऑफ द पाइप। मास निकालने के लिए सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द वुड दैट हैज बीन यूज्ड टू मेक दिस पाइप। ठीक है, मास निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? क्वांटिटी ऑफ द वुड। तो क्वांटिटी ऑफ द वुड का फॉर्मूला क्या बनेगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। सो दिस इज पाई capital R square h minus pi R square h. This will give you the quantity of the wood that has been used to make this wooden pipe. आगे वो कहता है find the mass if 1 centimeter cube of the wood is of mass 0.6 grams. This is the volume you are getting. 1 centimeter cube wood का कितना मास दिया हुआ है? 0.6 grams. Total mass निकालने के लिए क्या करोगे? Whatever answer you are getting of the quantity of the wood multiplied by 0.6। ठीक है, अक्षित क्लियर है? चलिए नाउ आई एम, हाँ जी हाँ जी हाँ बिल्कुल, पाई की वैल्यू डाल के सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, देयर इज ए लेड पेंसिल लेड पेंसिल है, व्हाट ही सेज सिलेंडर ऑफ वुड। नेचुरली बाहर एक सिलेंडर है, उसको उसने वुड का सिलेंडर बोला, एंड अ सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन इट, उसके बीच में ग्रेफाइट का सिलेंडर है, वो अंदर है उसके। सो इट इज अगेन द एग्जांपल ऑफ द होलो सिलेंडर, रादर यू कैन से सॉलिड सिलेंडर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू सिलेंडर्स। डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm। पेंसिल का डायमीटर 7 mm है, यानी कि ये पूरा, ठीक है। एंड
डायामीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 mm. जो बीच का ग्रेफाइट है उसका डायामीटर कितना है? 1 mm. दिस इज ग्रेफाइट, दिस इज पेंसिल. गुड. ठीक है. डायामीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 mm. सो इसको सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट, वैसे उसने कुछ ऐसा बोला है mm को इसमें करो या कुछ, सेंटीमीटर में है ना आगे लेंथ, तो इसको सेंटीमीटर में 1/10 you will do, it will become centimeter. So 0.1 centimeter, and then converting it into the radius, half of the diameter, that is 0.1/2, right? So this will be 0.05. This comes out to be the radius of the graphite portion, right? Let us find the let us write the diameter of the outer wooden pencil, that is 7 mm, converting it into the centimeters by dividing it to the 10, 0.7, right? Now radius 0.7/2, 0.35. ठीक है. So just we have converted the diameters into radius. Find the volume of the wood and that of the graphite. एक तो वुड का वॉल्यूम निकालना है, ग्रेफाइट का. इफ आई वांट टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट, तो मुझे इसकी तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है. एच दोनों के लिए सेम है. कितनी हाइट की पेंसिल है? 14 सेंटीमीटर. एच इज सेम फॉर बोथ. If I want to find the volume of the graphite, no need to look here. Just see, radius is provided to you, height is there. Paramveer, which formula you will apply to find the radius of the, to find the volume of the graphite? Volume of graphite. एक मिनट. परमवीर, ग्रेफाइट का वॉल्यूम कैसे आएगा? किस, एक मिनट बच्चे प्लीज डोंट हेल्प हिम. किस में से क्या माइनस करेंगे? आपने सामने पेंसिल इमेजिन करो और उसमें से ग्रेफाइट का वॉल्यूम आना है. हार्दिक नागपाल, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट. हाँ जी, हिंदी नहीं करनी उसकी. मैंने पूछा वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट. मैम ग्रेफाइट का वॉल्यूम हाउ टू फाइंड, उसको कैसे निकालना है, इसकी हिंदी ये होगी. आप बताओ वंश, यू टेल. पाई आर स्मॉल स्क्वायर एच. इसमें क्या मुश्किल था बेटे? रेडियस आपके पास है, हाइट आपके पास है, ग्रेफाइट का वॉल्यूम, फॉर्मूला लगाओ सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच. परमवीर किस दुनिया में हो आप? पागले की दुनिया. पाई आर स्क्वायर एच. बैठ जाओ. इज इट क्लियर? राइट. पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 0.05, एच इज 14. इज इट क्लियर? परमवीर ये कुछ मुश्किल था? नहीं था ना, फिर भी आप बता नहीं पाए. वेरी बैड. चलिए देन अब बताओ जरा, वुड का वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे? हाउ टू फाइंड दिस वुड. पेंसिल में वुड कितनी लगी हुई है, इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे? एक पेंसिल अपने आपके हाथ में पकड़ी हुई है, उसमें आपको सिर्फ वुड चाहिए, तो उसमें से क्या निकाल दोगे? ग्रेफाइट को माइनस कर दोगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा? रिदम. पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच. परवीर, नॉट अ गुड थिंग. You are मतलब this is not a nice gesture that you are not telling me. So many questions we have done, फिर भी आप नहीं कर पा रहे हो. बाहर वाला सिलेंडर पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच पूरी पेंसिल के वॉल्यूम में से जब ग्रेफाइट निकल गया माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, यू वट एवर इज लेफ्ट इन योर हैंड दैट विल बी वुड. एम आई क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8. Patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. सिलेंड्रिकल बाउल में पेशेंट को जो है वो सूप दिया जा रहा है हॉस्पिटल में, एंड द डायमीटर इज कितना? 7 सेंटीमीटर. डायमीटर से फटाफट से रेडियस निकाल लो, 3.5. और कहते चाहे इस बाउल की हाइट जितनी मर्जी हो,
आपने अप टू द ब्रिम इसको नहीं भरना, किनारों तक नहीं भरना, जिन्हों आप पंजाबी कहने नको नक नहीं भरना। इट इज टू बी फिल्ड अप टू द हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, सिर्फ 4 सेंटीमीटर की हाइट तक भर के देना है, ठीक है, इतना ही है हॉस्पिटल वालों के पास। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली इफ इट वांट्स टू सर्व 250 पेशेंट, 250 लोगों को दिया जाना है। पहले तो मुझे 250 लोगों की बात छोड़ो, if the hospital wants to provide it to a single person, how much soup will be provided? तेजवीर सूप की बात हो रही है। सूप अगर हम किसी चीज में मतलब कुछ चीज डालने की बात हो रही है, इसका मतलब उसके किस चीज की बात हो रही है? वॉल्यूम की बात हो रही है। तो व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ द सूप गिवन टू वन पेशेंट? एक पेशेंट को कितनी क्वांटिटी मिलेगी? पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना लोगे यहाँ पे? किया हुआ है बेटे, कितना? 3.5। हाइट बच्चे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, जब मैं पढ़ती हूँ आपका भी टाइम क्वेश्चन पढ़ने का होता है। 4 है, हाइट इज 4। एक पर्सन के लिए आ गया, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर टू बी 3.5 एंड एच टू बी 4, वी आर गेटिंग द क्वांटिटी ऑफ द सूप द हॉस्पिटल इज गिविंग टू वन पेशेंट एंड वी वांट टू फाइंड फॉर हाउ मेनी पेशेंट्स। तो व्हाट टू डू? मल्टीप्लाई बाय 250। बैठ जाइए प्लीज। फिफ्थ क्वेश्चन तैयारी है परीना, डिस्कस करने के लिए कर देते हैं। हाँ जी, हाँ। दीक्षित मैथ्स के पीरियड में जो टाइम देखता है उसका टाइम खराब हो जाता है, याद रखना। मैंने सिर्फ आपका नाम लिया, बताया सब, कहा सबको ये। हाँ जी, इट कोस्ट ₹2200 to paint the inner curved surface area of cylindrical vessel 10 meter deep. 10 meter deep means height दी हुई है। सिलेंड्रिकल वेजल, इट्स हाइट इज 10 मीटर और इसको अंदर से पेंट करना है, या दैट मीन्स इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करना है। एंड टू पेंट द कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, हाउ मच मनी द पर्सन हैज टू पे? 2200 cost for painting inner curved surface area ₹2200. What he says that at the rate of 20 per meter square, किस हिसाब से कॉस्ट किया जा रहा है? at the rate of 20 per meter square, 20 per meter square के हिसाब से। then he says find the inner curved surface area of the vessel. inner curved surface area हमें फाइंड करना है। आपको पता है हमें ये चीज दी हुई है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। वैसे अगर मैं आपको पूछूं कि टोटल कॉस्ट निकालो कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करने का, ध्यान से सुनना, मान लो कि ये नहीं दिया हुआ, मैंने आपको बोला टोटल कॉस्ट निकालो कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करने का, तो आप मेरे से कौन सी दो चीजें पूछोगे? चलो एक मिनट दोबारा मैं क्वेश्चन थोड़ा टर्न करती हूँ। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करने का टोटल कॉस्ट निकालना है। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। अब टोटल कॉस्ट के लिए क्या करोगे? पर मीटर स्क्वायर के कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई। तो अगर टोटल कॉस्ट मैंने लिखा हुआ है उसके नीचे अगर मैं लिख दूं कर्व्ड सरफेस एरिया मल्टीप्लाई कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2200, डू यू एग्री? किसी भी चीज का टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है? उस चीज को पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट के साथ, पर यूनिट कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करके। So just simply I'm writing that total cost of painting the curved surface area, this will be equal to curved surface area into cost per meter square. Am I clear? थोड़ा सा conceptual है पर रट्टा नहीं, आप इसको कह सकते। This is what we do whenever we have to find cost. Now this thing is given to you कितनी? 20। तो आप यहाँ से 20 को उधर जाके डिवाइड कर दो। 110 meter square comes out to be the inner curved surface area. ठीक है, क्लियर है?
नेक्स्ट देखो, रेडियस ऑफ द बेस। रेडियस ऑफ द बेस, आपको पता है जब हमने ट्राइंगल चैप्टर किया था, व्हाट आई टोल्ड यू, व्हेन देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ए क्वेश्चन, सेकंड इज फॉलोड बाय द प्रीवियस। सेकंड पार्ट है रेडियस, इसका मतलब पहले के साथ लिंक है। पहले में हमने क्या निकाला, कर्व्ड सरफेस एरिया, वहीं से शुरू करो। कर्व्ड सरफेस एरिया 110, वी वांट टू फाइंड रेडियस। कर्व्ड सरफेस एरिया के नीचे कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला, एंड दैट इज 2 पाई आर एच। एंड यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, 10 गिवन है। Pi you know 22/7, R you can find by putting H to be 10. Okay? अब अगला पार्ट देखते हैं, वो इससे रिलेटेड होगा। क्या है, कैपेसिटी ऑफ द वेसल। यू फाइंड R, you are given H, capacity of the vessel, vessel is cylindrical, and what is the volume of cylinder, pi r square. Very easy. चलिए इसी के साथ ही 13.63 हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब हमारे पास शुरू होती है 13.5, ये वॉल्यूम से रिलेटेड है, और इसके साथ की मिलती जुलती एक्सरसाइज कर्व्ड सरफेस एरिया से कौन सी है, आई थिंक 13.1, देखिए 1 नहीं है, 1 है। अच्छा, सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया की लग भी दी हुई है एक, है ना। पहले 13.2 करेंगे, फिर 13.2। I am doing question number 4. Starting with question number 4. Diameter of a road roller is 84 centimeter. Length is 120 centimeter. रोड रोलर ऐसे रखते हैं, डायमीटर कितना है 84, एंड लेंथ इसकी हाइट मींस 120, डायमीटर से पहुंचे रेडियस पे 42 है। What he further says, it is take 500 complete revolution to move over to level a playground. एक प्लेग्राउंड है, इस पे उबड़ खाबड़ मिट्टी है, इसको बोला गया इसको लेवल कर दे, तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा। वी ऑल हैव सीन ऑन द वन डे और द अदर ऑन द रोड रोलर इज मूविंग लाइक दिस, ठीक है, ऐसे ऐसे रोड रोलर को चला रहे होते हैं, है ना। तो रोड रोलर जो है वो ऐसे ऐसे घूम घूम के सारी सड़क पे जो पड़ी होती है उसको लेवल कर देता है। एनी क्वेश्चन? ठीक है, हाँ जी। ही सेज इट इज टेकिंग 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन to level the whole playground. What he says, find the area of the playground in meter square. Playground का मीटर स्क्वायर में हमें एरिया फाइंड करना है। हम पहले सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल लेते हैं, उसको बाद में मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज द होल डायमेंशंस दे आर गिवन इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। अब इस प्लेग्राउंड का एरिया ध्यान से देखना जरा, जैसे जैसे ये रोड रोलर इस प्लेग्राउंड पे रन होगा, ये थोड़ा थोड़ा एरिया इसका कवर करता जाएगा। तभी प्लेग्राउंड पूरा जो है लेवल होगा, अगर थोड़ा थोड़ा वो उस पर रन करेगा। जब ये अपना एक चक्कर घूम के रोड पे आएगा, सपोज इसने रोड का इतना एरिया कवर कर लिया, और आपको पता है रोड रोलर जब रोड पे घूमता है तो उसके जो कर्व्ड होता है, कर्व्ड पार्ट होता है, वही रोड को टच करता है। कभी देखा कोई रोड रोलर ऐसा हो जो ऐसे ऐसे घूमता घूमता फिर खड़ा हो जाता है, फिर ऐसा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है? नेवर। दैट मीन्स अपर जो सर्कुलर पार्ट है, दे नेवर टच द रोड, ओनली द कर्व्ड पार्ट टचेस द रोड। तो एक रेवोल्यूशन में वो रोड रोलर इस प्लेग्राउंड का जितना एरिया कवर करेगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट ऑफ द रोड रोलर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोड रोलर। एक चक्कर निकाला और रोड का कुछ हिस्सा कवर कर लिया। कब ये रोड का कुछ हिस्सा कवर